السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ سرکاری وپ ویملا وریشم نے CLP میڈیا سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کے چندر شیکھر راؤ کی جگتیال تقریر پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اس تقریر میں حقیقت کم اور بے بنیاد باتیں زیادہ تھی اور اس کا مقصد صرف موجودہ حکومت کو بدنام کرنا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ KCR کی تقریر میں کوئی ٹھوس مواد نہیں تھا بلکہ صرف الزامات اور اشتعال انگیزی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی کارکردگی کو عوام سراہ رہے، جسے برداشت نہ کرتے ہوئے BRS قیادت تنقید کر رہی۔ وریشم نے کہا کہ KCR نے اپنے دور میں کئی رہنماؤں کو نظر انداز اور بے عزت کیا، جن میں وجے شانتی، ایٹالہ راجندرن، ناگم جناردھن ریڈی اور دیگر شامل ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ تحریک میں قربانیاں دینے والوں کو بھی مناسب احترام نہیں دیا گیا۔ انہوں نے مشن بھگیرتا اسکیم پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی ہر گھر کو پانی فراہم کیا گیا ہے تو وہ اپنے حلقے میں اس پر کھلی بحث کے لیے تیار ہیں، اور اگر ایک بھی گاؤں میں مکمل سپلائی ثابت ہو جائے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹیون، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ آ جاؤ صفا، شادیوں کا سیزن آ چکا ہے اور صفا گارمنٹس لایا ہے ویڈنگ اسپیشل آفر، فلیٹ 40% آف آن ریڈی میڈ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ اسٹارٹنگ رینج صرف 1499 میں، فلیٹ 30% آف آن شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن فیبرکس، فلیٹ 25% آف آن کٹ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ جلدی ہے، کوئی پرابلم نہیں، ارجنٹ سٹیچنگ صرف 8 گھنٹے میں۔ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری سٹیچنگ صرف 1499 میں۔ شادی ہو یا اسپیشل اوکیشن، اپنی شخصیت کو دیجیے ایک رائل انداز۔ نیو گرینڈ شو روم، حیات مال بسائڈ منروا سویٹس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ملازمین نے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال شروع کر دی۔ وہ تنخواہ پر نظر ثانی، PRC نجکاری کو روکنے اور RTC کو حکومت کے ساتھ ضم کرنے سمیت 32 مطالبات کو لے کر ہڑتال کر رہے۔ اسی درمیان تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن RTC ملازمین سے ہڑتال منسوخ کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ میں اپنے RTC کے ملازمین بھائیوں اور ان کے اہل خانہ کے ممبران سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تنظیم کے تحفظ اور عوامی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے ہڑتال کو واپس لے لیں۔ پونم پربھاکر نے مزید لکھا، ہڑتال مسئلے کا حل نہیں، حکومت نے 4 اعلیٰ افسران کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کو 4 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ہم کمیٹیوں کے نام پر تاخیر کر رہے۔ انہوں نے زیادہ تر مطالبات کو تسلیم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ریاستی وزیر کا کہنا ہے کہ RTC ملازمین کے ذریعے اٹھائے گئے 32 مسائل میں سے حکومت کو 29 مسائل پر کوئی اعتراض نہیں، ان تمام کو فوری طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔ RTC کا انضمام اور تسلیم شدہ یونینوں کے انتخابات، یہ دونوں مطالبات اب بھی زیر التوا ہیں۔ ہم نے 4 افسران والی کمیٹی کو مطلع کیا ہے کہ ہم ان دونوں مطالبات پر وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ سے تبادلہ خیال کریں گے۔ اگرچہ RTC کے انضمام میں تاخیر ہو رہی ہو، لیکن ملازمین کو ماہ کی پہلی تاریخ کو تنخواہ مل رہا۔ تسلیم شدہ یونینوں کے انتخابات کے متعلق کہا کہ لیڈران کے درمیان داخلی تنازعہ اور قیادت سے متعلق مسائل موجود ہیں۔ راجندر نگر زون کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس S سرینواس IPS نے بقرعید، عید الاضحیٰ کے پیش نظر کیے جانے والے انتظامات کے بارے میں میڈیا کو آگاہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے قریشی برادری کے نمائندوں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا، جس میں برادری کے مسائل اور خدشات پر تفصیلی گفتگو کی۔ DCP نے اجلاس کے دوران تہوار کو پرامن اور خوش اسلوبی سے منانے کے لیے ضروری ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس تمام طبقات کے ساتھ تال میل قائم رکھتے ہوئے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ قانون کا احترام کرے اور تہوار کے دوران امن و امان برقرار رکھنے میں پولیس کا تعاون کرے تاکہ بقرعید کی تقریبات بغیر کسی رکاوٹ کے انجام پائے۔ یہ حیدرآباد اولڈ سٹی میں ایک بڑے اسکیل میں یہاں پہ پبلک کا سیلیبریٹ کرتا ہے، تو کل ہمارے کمشنر آف پولیس حیدرآباد سجنار صاحب کل پورے آفیسرز کو انسٹرکشن دیے کہ لوکل جو یہ قریشی جماعت اور دوسرے لوگ جو باہر سے جانور لاتے ہیں یہاں پہ ان کے کسٹمرز کو قربانی کے لیے سپلائی کے لیے لاتے ہیں، ان سے ایک میٹنگ آرگنائز کرنے کا۔ تو آج فلک نامہ ڈویژن میں 4 پولیس اسٹیشن
में जो ये कुरैशी जमात और दूसरे लोग हैं, वो लोगों को काला पत्थर पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कबायली अवाम की तरक्की के लिए एक मुनफरिद कदम उठाया गया। रियासती वजीर सयाहत, सकाफत और कबायली बहबूद जूपली कृष्णा राव ने आदिलाबाद जिले के उटनूर मंडल के गोंडू गोड़ा गांव में आदिवासी टूरिज्म एक्सपोजर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया। इस मौके पर तकरीबन 250 कबायली अफराद को खुसूसी बसों के जरिए हैदराबाद के तालीमी और सयाहती दौरे पर रवाना किया गया। ये काफिला तारामती बारादरी पहुंचेगा, जहां से 2 रोजा मुतालियाती दौरा जारी रहेगा। इस दौरे के दौरान कबायली अफराद चार मीनार, गोलकुंडा किला, लुम्नी पार्क, शिल्पारामम और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे समेत कई अहम मुकामात का मुशाहिदा करेंगे। वजीर जूपली कृष्णा राव ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद कबायली अवाम को जदीद मुआशरे से रोशनास कराना, उनमें खुद एतमादी पैदा करना और तालीम व तरक्की की तरफ राग़िब करना है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी के नफाज पर आला सतह जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। आबादी के नज़्म व नस्क़ के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली गौर किया। अहदेदारों की जानिब से अज़ला के हिसाब से फर्टिलिटी रेट की पेशकश की और कड़पा में सबसे ज़्यादा 1.99, जबकि विशाखापट्टनम में सबसे कम 1.32 शरह दर्ज की गई है। रियासत में औसतन टोटल फर्टिलिटी रेट 1.5 होने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आला की जानिब से इसे 2.1 तक बढ़ाने के लिए मौसर एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी गई। इजलास में महकमे सेहत, मालियात, देही तरक्की, मेहनत और ख़वातीन व अतफाल बहबूद के आला अफसरान ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के जिले अंकापल्ली के रवायकमतम मंडल के कोत्ताकुट्टा मेजर पंचायत के तहत अंबेडकर कॉलोनी में पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ मुकामी अवाम ने खाली बर्तनों के साथ एहतजाज किया और रैली और धरना मुनक़्क़िद किया। मुकामी अफराद के मुताबिक गुज़िश्ता 7 महीने से कॉलोनी में पीने के पानी की फराहमी बंद और जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल कनेक्शन तो फराहम किए गए, लेकिन सिर्फ 15 दिन तक ही पानी आया। इसके बाद सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद। इस स्कीम पर तकरीबन 7 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए गए, जिसका इफ्तिताह 13 मार्च 2024 को मुकामी MLA धर्मश्री ने किया था। अवाम ने बताया कि पानी के मसले पर एहतजाज किया गया था, जिसके बाद मुकामी अहदेदारों ने मसला हल करने की यकीन दहानी कराई थी, मगर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में महाराष्ट्र के वजीर गिरीश महाजन को ख़वातीन रिजर्वेशन के हवाले से मुनक़्क़िद बीजेपी के मुजाहरे के दौरान एक खातून के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल मुंबई के वर्ली में बीजेपी के मुजाहरे की वजह से रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया था, जिससे सैकड़ों लोग परेशान हो रहे थे। यह हालत देखकर एक खातून ने वजीर को मौके पर ही घेर लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। यह वाक़या उस वक्त हुआ जब गिरीश महाजन रैली के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। ये मुजाहरा लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन से मुत्तल्लिक़ आईनी तरमीमी बिल पास न होने पर अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ मुनक़्क़िद किया गया था। मुजाहरे के दौरान एक नाराज खातून वजीर के पास पहुंची और रोड जाम करने नीज़ आम लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर उन पर नाराज हो गई। खातून ने इंतहाई बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ से निकल जाओ, आप ट्रैफिक जाम कर रहे हो। खातून ने सवाल किया कि रैली पास के किसी मैदान में क्यों नहीं की गई, जिसे ट्रैफिक में रखना नहीं पड़ता और अवाम परेशान नहीं होते। इस पर वजीर गिरीश महाजन ने खातून को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मजीद नाराज हो गई और तल्ख अंदाज में कहा कि समझ में नहीं आता क्या आपको क्या हो गया है, सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मैं बात करता हूँ। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। हटाओ ना। कौमी राजधानी दिल्ली में शदीद गर्मी के पेश नज़र हुकूमत ने एक अहम फैसला किया। गर्मी के दौरान स्कूली बच्चों की हिफाजत के इंतजामात से मुत्तल्लिक़ उठ रहे सवालों के दरमियान दिल्ली हुकूमत की जानिब से बच्चों की सेहत को तरजीह दी गई और पहली बार एक खास कदम उठाते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई। नई गाइडलाइंस में कुछ अहम फैसले किए गए और एक फैसला हर स्कूल में वाटर बेल घंटी बजाए जाने का है।
हुकूमत की जानिब से जारी की गई ताज़ा हिदायत के मुताबिक गर्मी के कहर को देखते हुए अब हर 45 से 60 मिनट में स्कूल की घंटी बजेगी। ये घंटी क्लास ख़त्म होने या तब्दील करने के लिए नहीं बल्कि बच्चों को पानी पीने की याद दिलाने के लिए होगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने साफ कहा कि शदीद गर्मी के दरमियान पढ़ाई के दबाव में बच्चे पानी पीना भूलें। इसके लिए स्कूलों को लाजमी तौर से इस तरह के इंतजामात नाफिज करने होंगे। डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपये की कदर 24 पैसे गिर गई। जब से मशरिक वसत की जंग शुरू हुई है तभी से हिंदुस्तानी रुपये और हिंदुस्तान में बैरून मुल्क की सरमायाकारी मौजू बहस है। इन मुश्किल हालात को पेश नजर रखते हुए RBI ने ताज़ा बयान जारी किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि हिंदुस्तान में बैरून मुल्क की सरमायाकारों के आने जाने और रुपए के कदर में जो उतार चढ़ाव है वो आर्जी है और वक्त के साथ मामूल पर आ जाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन सभी चीजों पर लगातार नजर रखी जा रही। ये बात उन्होंने न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी कॉन्सुलेट जनरल के जरिए मुनक्किदा एक मीटिंग में कही, जिसमें दुनिया भर के बड़े सरमायाकार और मालियाती इदारों के नुमाइंदे शामिल हुए। RBI गवर्नर ने बताया कि हुकूमत हिंद और RBI मिलकर उसूलों को आसान बना रहे ताकि कारोबार करना आसान हो और ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकार हिंदुस्तान में सरमायाकारी कर सकें। साथ ही हिंदुस्तान के बाजारों को आलमी बाजार से मजीद मजबूत तरीके से जोड़ा जा रहा। इंतखाबी रियासत मगरबी बंगाल में वोटिंग से एक दिन कबल रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने 1951 के अवामी नुमाइंदगी एक्ट को नाफिज करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों के ओहदेदार, पार्टी कारकुनान और हामी जो मुतल्लिका इंतखाबी हल्के के वोटर नहीं हैं और जिन्हें बाहर से लाया गया है, उन्हें इंतखाबी मुहिम की मियाद खत्म होने पर फौरी तौर से इंतखाबी हल्के से बाहर निकल जाना चाहिए। यानी वोटिंग से 48 घंटे पहले इंतखाबी हल्के से गैर मुकामी अफराद को बाहर जाना होगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कहना है कि किसी भी ऑफिसर की जानिब से किसी भी तरह की लापरवाही, बदसलूकी, तफरीक या नाकामी को संजीदगी से देखा जाएगा। कानून और लापरवाही की संगीनी के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चंद हिदायत जारी की है। ACI के अफसरान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को हुक्म दिया कि जारी की गई हिदायत को यकीनी बनाएं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की बरसी से कबल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ हुकूमत ने हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला लिया। पाकिस्तान ने अपने फिजाई हुदूद में हिंदुस्तानी तैयारों पर आयद पाबंदी को 24 मई तक लेकर बढ़ा दिया। गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में 26 लोगों की मौत के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी फिजाई हुदूद एक दूसरे के लिए बंद कर दिए थे। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद 24 अप्रैल 2025 से हिंदुस्तानी तैयारों के लिए बंद, जबकि गुज़िश्ता साल 30 अप्रैल से पाकिस्तानी तैयारों को हिंदुस्तानी फिजाई हुदूद का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस टू एयरमैन नोटम में कहा कि तमाम हिंदुस्तानी रजिस्टर्ड लीज पर लिए गए कमर्शियल और फौजी तैयारों को 24 मई 2026 की सुबह 5 बजे तक पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी कर दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक आधी रात के बाद जारी किए गए एक बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तान की क़यादत की अपील के बाद ईरान पर मनसूबा बंद फौजी हमले में ताख़ीर और जंग बंदी में तोसी पर रजामंद हो गए हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि वो इस जंग बंदी में तोसी कर रहे जिसे उन्होंने ईरान के अंदर संगीन तौर पर टूट फूट का शिकार सूरत हाल के तौर पर बयान किया। उन्होंने तेहरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए मुतफ़िक़ा पोजीशन के फ़क़दान पर तशवीश का इजहार भी किया। बयान के मुताबिक तौक़ुफ़ की दरख्वास्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की थी। वाशिंगटन ने इस वक्त तक किसी भी जारहाना कार्रवाई को रोकने पर इत्तफ़ाक़ किया है जब तक कि ईरानी रहनुमा और नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ पेश नहीं करते। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। हर वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और जिंदगी में कामयाब हो। सक्सेस द स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, हम बच्चों में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप करते हैं। हम हर स्टूडेंट को उनकी बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जाते हैं।
Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. Limited seats are available. आज ही सक्सेस द स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद रखिए। सक्सेस द स्कूल, जहां तालीम भी है और तरबियत भी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।